کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. بعض اوقات بطور مسیحی ہم دکھ اٹھانا نہیں چاہتے. ہم دکھ اٹھانے سے بچنا چاہتے ہیں. ہم بوجھ سے بچنا چاہتے ہیں. لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں مجھ پر بڑے بوجھ ہیں، براہ کرم میری دعا کریں، براہ کرم دعا کریں کہ میرے دکھ ختم ہو جائیں. اور لوگ مذبح پر آتے ہیں، وہ کراہتے ہیں، وہ روتے ہیں، اور وہ خدا سے کہتے ہیں مہربانی کر اور یہ مجھ سے دور کر دے. بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ دکھ ہمارا سب سے بڑا استاد ہے. بعض اوقات دکھ ہمارے بہترین دوست ہوتے ہیں کہ ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہمیں چھانٹتے ہیں اور ہمیں تبدیل کرتے، اور ان کے ذریعے خدا ہماری اصلاح کرتا اور ہمیں کامل بناتا ہے. اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں ساؤل سے گفتگو کرنے کے بعد خدا حننیہ سے یوں فرماتا ہے. اس نے فرمایا تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. میں اسے دکھاؤں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر دکھ اٹھانا ہوگا. میرے دل کو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے جب مسیحی دکھ اٹھانے کے خوف سے اپنی بلاہٹ سے پھر جاتے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتی ہوں اور ان کے لیے روتی ہوں. وہ کہتے ہیں اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، بہت سا ستایا جانا ہے، بہت سی مشکلات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہمارے لیے دکھ اٹھانا ہے، اور دکھ اٹھانا ہمارے اندر تبدیلی لانے اور الہی کردار پیدا کرنے کے لیے خدائی طریقہ ہے. گزرے برسوں میں نے اپنی دعائیں تبدیل کی. میں نے خدا سے کہنا شروع کیا میرے دل کو ان باتوں سے توڑ جو میری دل شکنی کا باعث ہے. میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے موڑے، اور میں تیرے دل کے وہ بوجھ چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بوجھ کے بغیر آپ دعا بھی نہیں کر سکتے. کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ کے دل پر بوجھ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی دعائیں ٹوسٹ کی طرح روکھی ہیں، خشک دعائیں. جی ہاں، بالکل خشک دعائیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بیٹے یا ایک بیٹی کے لیے ماں کی دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، کیونکہ ماں، باپ، والدین اپنے بچوں کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، لیکن پھر خدا دعا کرنے کے لیے ہمیں بوجھ دیتا ہے، اور وہ ہمیں اس لائق بناتا ہے. وہ ہماری گرہ بندی اور ہمارے دلوں کو تبدیل کرتا ہے تاکہ اپنے بجائے کسی کے لیے دعا کریں. ابھی حال ہی میں نے جنسی اسمگلنگ پر ایک پروگرام کیا ہے. میں نے بچیوں کے متعلق پروگرام کیا ہے. 4-5 سال کی بچیوں کو جنسی غلامی میں بیچا گیا، اور وہاں پنک روم نامی کمرہ تھا. اس کمرے میں صرف کنواری لڑکیاں جا سکتی تھیں. 40-50 یا 60 سال کی عمر کے لوگ زیادہ پیسے دے کر گلابی کمرے میں جاتے تھے تاکہ اپنی عیش کے لیے ننھی لڑکیوں کی عزت لوٹ سکیں. پہلے جب میں وہ پروگرام کر رہی تھی تو تیاری کے دوران ہم نے وہ ویڈیو دکھائی کہ اگاپے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے. اس کا نام ہے اگاپے انٹرنیشنل مشنز. اور ہم نے وہ ویڈیو دیکھنی شروع کی، اور اس کو دیکھنا اتنا مشکل تھا، اور ہمیں اسے اس لیے دیکھنا پڑا کہ سمجھ سکے کہ کمبوڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تھائی لینڈ اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ میں سوچتی تھی کہ شاید مجھے یہ نہیں دیکھنی چاہیے، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ سکون سے رہوں
اگر میں یہ ویڈیو نہ دیکھتی تو اچھا سو سکتی. شاید مجھے اس سے اپنا منہ پھیرنا پڑے کیونکہ یہ میرے لیے کٹھن ہوگا، خاص کر ماں ہوتے ہوئے. میری ایک بیٹی ہے اور ایک ننھی لڑکی کو اس مشکل یا آزمائش سے گزرتے دیکھوں. اس تنظیم نے ایک لڑکی کو اس کے اغوا ہونے کے 20 دنوں بلکہ 22 دنوں بعد بچایا، اور وہ خوش تھے کہ انہوں نے 22 دنوں میں اتنی جلدی کسی لڑکی کو بچایا ہے. یہ بڑی کامیابی تھی، لیکن اس لڑکی کو صرف 22 دنوں میں 198 آدمیوں نے بے آبرو کیا، اور یہ آپ کے دل کو توڑتا ہے. اور آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ تو آر ریٹڈ ہے. ایسی چیز آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس سے ان کی معصومیت چھن سکتی ہے. یہ ہیوی ڈیوٹی مواد ہے. وہ زبان جو انہوں نے بولی اور گرافکس، ایسی چیز جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی. جیسا کہ پیشن آف کرائسٹ میں صرف 2 مرتبہ دیکھ پائی ہوں، میں یہ سن نہ سکی. میں فلم دیکھنے کی تکلیف میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، بالکل نہیں. لیکن بعض اوقات ہم ریت میں اپنا سر چھپا کر نہیں کہہ سکتے. آپ کو پتا ہے کیا، میں مصائب کو نہیں دیکھ سکتا. میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں، میں اپنی زندگی میں آرام سے ہوں. میرے پاس اپنی چھوٹی سی چیز پسند ہے. لیکن میں ان خواتین و حضرات کے لیے شکر گزار ہوں جنہوں نے ڈٹ کر کہا آپ کو پتا ہے کیا میں کمبوڈیا جاؤں گی، میں تھائی لینڈ جاؤں گی. یہ $150 بلین کی صنعت ہے. انسانی اسمگلنگ، جنسی غلامی $150 بلین کمانے والی صنعت ہے، منشیات کے بعد دوسرے نمبر پر. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں یہ کتنی بڑی ہے، لیکن میں وہاں جا کر فرق ڈالوں گا. آپ کو پتا ہے کیا کہ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. اس نے مجھے مجرم ٹھہرایا، اور میں نے خداوند سے کہا اے خداوند مجھے ایک زائد جوتا خریدنے پر معاف فرما، جبکہ میں اس ننھی بچی کو ایک رات کی اچھی نیند دے سکتی تھی. مجھے اس نفس پروری پر معاف فرما خداوند، مجھے اس لطف اندوزی پر معاف کر، مجھے معاف کر. میں ایک اور لڑکی کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے اس کی مدد کر سکتی ہوں. ہم لوگ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، ہم تکلیف کو دیکھنا نہیں چاہتے. ایک اور تنظیم ہے ایکسوڈس روڈ، اور ان بچیوں کو تھائی لینڈ سے بچاتی ہے. اور اس شخص نے کہا، نوجوان شخص، وہ ان تمام مشنز کا سربراہ ہے، ایک نوجوان آدمی. اور کیلیفورنیا میں اس نے ایک گھر میں خطاب کیا، میں سن رہی تھی. اس نے کہا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جان لیں کہ میں نے ایک کامل مسیحی زندگی گزاری. میں نے کبھی سگریٹ نہیں پی، شراب نہیں پی، اپنے ہونے والی بیوی کے سوا کبھی کسی لڑکی سے ملاقات نہ کی. وہ ہر طرح سے پہلی خاتون تھی. شادی ہونے تک ہم نے خود کو پاک رکھا. میں اوریا فلموں کی دنیا کو نہیں جانتا. میری زندگی یا میری خاندانی زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا. میرے والدین نے مجھے پاکیزہ زندگی جینا سکھایا تھا. میری خواہش ہے کہ سب والدین اپنی مثال دے کر ایسا ہی کیا کریں. لیکن اس نے کہا میں کبھی کوٹھی خانے میں نہیں گیا، لیکن اب میں تھائی لینڈ میں کام کرتا ہوں اور میں کسی ایک کو بچانے کے لیے روزانہ گندی جگہوں میں جاتا ہوں، کسی ایک کی زندگی تبدیل کرنے کی خاطر. آپ کو پتا ہے کیا، ہم نے جو ویڈیو دیکھی وہ بوجھل تھی. ویڈیو دیکھنے کے 2-3 دنوں کے بعد میں سن ہو کر چلتی رہی، اور بعض اوقات خود سے پوچھتی رہی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میں اس طرح کیوں محسوس کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ میرا دل ان باتوں سے دکھ رہا تھا جس سے اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے. اور یہ ٹھیک تھا، یہ بھلا تھا، کیونکہ یہ میرے لیے فائدہ مند تھا کہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر ان ننھی بچیوں کے لیے دعا کروں، اور ان کے لیے دعا کروں جو دکھ اٹھا رہی ہیں.
मैं अपने आंसुओं को रोक कर कह सकती थी। मैं अपना मेकअप खराब करना नहीं चाहती थी। लेकिन आपको पता है क्या, खुदा की खिदमत करना ऐसा ही है। खुदा की खिदमत करना इस तरह दुख उठाना है, जैसा आपने सुना हो कि लियोनार्ड रेवनहिल ने कहा, मसीही जिंदगी कामयाबी की जिंदगी नहीं बल्कि ये कुर्बानी की जिंदगी है। ये कुर्बानी है, इस तरह नहीं जैसे बास मुनादे से बिगाड़ते हैं, तब्दील करते हैं, यीशु की खूबसूरत खुशखबरी को बदल देते हैं। ये दुख उठाना है। इब्ने आदम, खुदा का बेटा, जमीन पर खिदमत लेने नहीं बल्कि दुख उठाने और खिदमत करने, और उसने हम सब के लिए अपनी जान दे दी। रोमियो 5:3-5 आयत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मैं मुनादी करने वालों की खूबसूरत अंजील को कामयाबी के पैगाम में बदलते हुए सुनकर दुखी हो जाती हूँ। लखपति बनने के पांच इकदाम, ये बनने के लिए 5 इकदाम, इस औसत दर्जे की जिंदगी से छुटकारे के 5 इकदाम, बहुत सी चीजों के लिए। लेकिन मुझे ये बताने दे कि आसमान पर जाने का एक ही कदम है। इसलिए हम मसीह की मिसाल देते हैं। उसने दुख उठाया। दुख उठाना खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। ये उसकी मर्जी है, और हम में से बास कभी कभार उससे भागना चाहते हैं। पहला पतरस 5:10 फरमाता है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपनी अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी सी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। किसी मर्द या औरत के लिए ये अजीम कुर्बानी है कि वो दूसरे लोगों के लिए अपनी जान दे। और कंबोडिया, थाईलैंड या इंडिया में ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वो अपनी जान निछावर कर रहे हैं। वो अमेरिका में अपने आरामदेह बिस्तर छोड़ रहे हैं और किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बहुत मुसीबत है। आप जानते हैं क्या, मैं खुदा के काम का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं उस काम का हिस्सा बनना चाहता हूं जो वो दुनिया में कर रहा, क्योंकि मैं उसके बाजू और हाथ और उसका मुनाद और उन बच्चों के लिए उसका प्यार बनना चाहता हूं। मैं दुनिया तब्दील करने वाला बनना चाहता हूं, और मैं एक वक्त में एक काम करूंगा और बाकी काम खुदा करेगा। यस्सु की मां मरियम एक फरिश्ते से मिली, और फरिश्ते ने उसे बताया, तुम पर बड़ा फजल हुआ है, तुम पर बड़ा फजल हुआ है। तसव्वुर करें, वो रूह कुद्स से हामला हुई और वो यीशु को जन्म देने को थी, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। अजीम मैं हूं। दुनिया का खालिक उसके बतन से दुनिया में इंसान बनकर आने को था, ताकि लोगों को उनके गुनाहों से बचाए। ए मरियम, तेरी मंजिलत अजीम है, और ये चाबी और उस साहिबान का पता है। तुम 9 माह बाद वहां जाकर उस खूबसूरत साहिबान में बच्चे की पैदाइश के लिए जाना, और वो हर किस्म के आला सर्जन और डॉक्टर हैं, क्योंकि तुम यीशु को जन्म देने वाली हो, जो दुनिया का निजात दहिंदा है। क्या उसने ये कहा? नहीं,
मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ को सराय के दरवाजों पर दस्तक देना पड़ी और उस वक्त वज़ा हमल का वक्त बहुत करीब था। उन्हें आजमाइशों और मसाइब से गुजरना पड़ा और फिर जब यीशु ने जन्म ले लिया तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने ये ना कहा खुदा हमारी हिफाजत करेगा, वो जरूर करेगा, लेकिन फरिश्ते ने यूसुफ पर जाहिर होकर कहा कि यहां से भागो, क्योंकि वो बच्चे की जान के ख्वाह हैं। उन्हें वहां से भागना पड़ा। मुकद्दस सैमुअल ने आकर मुकद्दस दाऊद बादशाह को मसा किया। उसने उसके सर पर तेल उंडेला और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तुम्हें इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करता हूं। अब ये तुम्हारे महल का पता है। जाओ और इस्राएल पर हुकूमत करो। क्या उसने ये कहा? नहीं। उसने मुकद्दस दाऊद को बतौर बादशाह मसा किया और मुकद्दस दाऊद को जान बचाने के लिए साउल के सामने भागना पड़ा। वो अपने मुकर्रर किए जाने के बाद एक गार में रहने वाला बन गया। जान बचाने के लिए अपने लोगों के साथ जगह जगह भूख प्यास और तकलीफ में भागा, क्योंकि उसे साउल बादशाह से मोहब्बत थी, यूनतन से प्यार था। उसने पूछा कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया है कि तू मेरी जान लेना चाहता है? क्योंकि वो हसद करता था। जब आपको खुदा की बादशाही के लिए बुलाया गया हो, खुदा की बादशाही के कामों के लिए बुलाया गया हो, तो खुद को तैयार करें। आपको पता है कि एक वक्त था कि मिनिस्ट्री में बहुत से लोग मेरे खिलाफ थे। बहुत से लोग, तसव्वुर करें, मैं मशरिक वुस्ता में टीवी पर हूं और लोग अब भी मुझे लिखते हैं, हम तुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम एक बदी का बीज हो, तुम शैतान की बेटी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तुर्की से मेरे अपने लोग मुझे लिखते हैं। वो अब भी मुझे हौलनाक और बदसूरत बातें लिखते हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ, कैसे बात करती हूँ, कैसी यूं हूँ, कैसी वो हूँ। एक वक्त था जब मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मुझे याद है कि एक दिन मैं अपने घुटनों के बल हो गई और बस खुदावंद के सामने रोती गई। मेरे खिलाफ वो तमाम नफरतें और लानतें जो मैं सुनती थी मुझे दुख देती और दिल तोड़ देती। और फिर मेरी जिंदगी में बहुत से लोग मेरे सामने उस वक्त हर तरह की बेइज्जती और बदनामी और मुखालफत करते रहे और मैं अपने घुटनों के बल हो गई, जैसे मुकद्दस पौलुस हुआ होगा, और कहा इसे मुझसे दूर कर दे। और खुदावंद ने कहा अगर तुम अपने मसाइब पर इसी तरह रोती रही तो बेहतर है कि आज ही छोड़ दो। अगर तुम हर वक्त इसी तरह दुआ करोगी कि इसे मुझसे दूर कर दे, इसे मुझसे दूर कर दे, तो बेहतर है कि आज ही छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें कुव्वत देना चाहता हूं कि तुम मुसीबत में लड़ सको। मैं तुम्हें इत्मीनान देना चाहता हूं, माफूकुल फितरत, कि मुसीबत में भी तुम्हें माफूकुल फितरत इत्मीनान हो। लेकिन उसने फरमाया कि जब तक तुम इस वादी में से ना गुजरोगी तब तक कभी ना जान पाओगी कि मेरे वास्ते दुख उठाना कितनी भली बात है। मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर रही कि जैसे मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत ना थी। अगर आप मेरी गवाही को नहीं जानते तो ये जान लें कि 2 शादियों में नाकाम हुई, 28 साल की उम्र में अकेली मां थी, और जब यीशु से मिली तो खुदकुशी करने वाली थी, और उसके बाद मेरी मुसीबत बिल्कुल खत्म ना हुई। बाज लोग आपको उस कामिल और आइडियल जिंदगी यानी अमेरिकन हॉलीवुड वाली जिंदगी की राय देंगे। ये खुदा का ख्वाब नहीं है, ये उसका मंसूबा नहीं है। उसका प्लान अजीम तर है। उस खुशहाली की खुशखबरी के जिस पैगाम की मुनादी मैं करूंगी वो ये है कि मेरे आसमानी बाप के यहां मेरे लिए बहुत से मकान हैं। यीशु ने फरमाया इस दुनिया में तुम मुसीबत उठाते हो,
तुम पर जुल्म सितम होगा। उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। तुम अपने ही घर में अजियत उठाओगे, अपने खावन से, अपनी माँ से, अपने बाप से। लोग तुमसे कहेंगे, ये तो बहुत ही मजहबी बात है, ये तो बड़ी रूहानियत है। क्या आप समझते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बियाबान में टिटिया खाता और फटे पुराने कपड़े पहना करता था, क्या वो नॉर्मल नजर आता था? क्या आप सोचते हैं कि उसे तनकीद का निशाना बनाया गया होगा? लोग उसे पागल इंसान समझते होंगे और वो ऐसा ही नजर आता होगा। वो एक अहमक दिखाई देता था। जब आप खिदमत करेंगे तो आप अहमक दिखाई देंगे। क्या आप जानते हैं, मैं किसी भी चीज से बढ़कर यीशु के लिए अहमक दिखाई देने को तरजीह दूंगी। मैं खुदा के लिए जोकर बनने या यीशु मसीह के लिए अहमक बनने पर बुरा ना मनाती, लेकिन अगर मैं उसके साथ जुड़ी ना होती तो आज ये ना जान पाती। और फिर वो मेरी जिंदगी में मौजूद दूसरी चीजों को मेरे सामने लाया जो मुझे उसके हवाले करनी थी। ये हैरत अंगेज है कि खिदमत से पहले मेरी जिंदगी में से उसे कितना कूड़ा निकालना पड़ा, और वो अब भी ये कर रहा है। जब तक मैं उसे रूबरू नहीं मिलती तब तक मैं कभी कामिल नहीं बनूंगी और जेरे तामीर रहूंगी। मुसीबत उठाने के दौरान आप तन्हा होते हैं, ये बड़ी तन्हाई की जगह है। जी हाँ, कोई आपके कंधे पर हाथ तो रखता है, लेकिन ये वीरान जगह है। आज शायद आपको तलाक का सामना हो, आपको कैंसर का सामना हो सकता है कि आपको नाकाबिले तसव्वुर मुसीबत का सामना हो, लेकिन ये बात मैंने किसी दिन एक अच्छे मुनाद से सुनी थी। अगर आप दाना हैं तो आप अपने पैसे जाया नहीं करते। अगर आप दाना हैं तो अपना वक्त जाया नहीं करते। और अगर आप दाना हैं तो अपनी मुसीबत भी जाया नहीं करते। आप सीखते हैं। मैं एक खातून को जानती हूं, उसे छाती का कैंसर था और छोटी सी उम्र में उसकी छातियां अलग कर दी गई थी। हम पहले उसके घर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें बड़े कामिल तौर पर बैठना था। वो जगह एक अजायब घर की सी थी। हम किसी चीज को छू नहीं सकते थे। मैं अपने बच्चे साथ ना ला सकती थी। मैं ऐसा कुछ ना करती कि बेतरतीबी पैदा हो, क्योंकि वो घर के मामले में बेहद परफेक्ट थी, बिल्कुल जैसे तस्वीरों और रिसालों में होता है। बस हम उसके घर जाकर सुखी न रहते थे। उस पर सफाई का भूत सवार था। उसे हर चीज संभाल कर रखनी होती थी और आला संभाल करनी होती थी। उसके साथ चलना मुश्किल था, लेकिन हमारे पास उसके घर जाकर उसकी बीमार पुरसी करने के अलावा और कोई चारा ना था। लेकिन उसके साथ होना बहुत मुश्किल था। और फिर उसे छाती का कैंसर हो गया और उन्होंने उसकी छातियां अलग करना पड़ी। उसने मुझे रोते हुए फोन किया, प्लीज मेरे लिए दुआ करें, प्लीज मेरे लिए दुआ करें। क्योंकि जब आप मुसीबत से गुजरते हैं तो जिंदगी भली नहीं दिखती। यूं महसूस होता है जैसे वो मुझसे कह रही हो कि इसे बर्दाश्त करने के बजाय मैं मरने को तरजीह दूंगी। मेरे लिए दुआ करें। और उसने खुदा से रुजू करना शुरू किया, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो इस बात की गवाही दे सकती है कि वो पहले से बेहतर इंसान है। मैं उसके घर जाती हूं। अब मैं उसके घर किसी भी वक्त जा सकती हूं। आपको पता है कि दुख उठाने के बाद क्या होता है? आपकी खुद ही मर जाती है। जिस चीज की पहले कोई वक़्त ना हो वो जाती रहती है। अगर आपकी खुद ही मर जाए तो कोई चीज आपको दुख नहीं पहुंचाती। आप छोटी छोटी बातों को खुद ही के इनकार के बाद खातिर में नहीं लाते, और दुख ये पैदा करता है। आपको तकलीफ तो होगी क्योंकि आप फिर भी इंसान हैं, लेकिन चीजों के मुतालिक आपका रद्द अमल बदल जाता है। आप इस तरह का रवैया नहीं रखते जैसे पहले था। आप इतने दुख उठाने के बाद नुकसान नहीं गिनते। मुझे तजुर्बा है कि मेरे रहम में कैंसर था और खुदा ने शिफा दी। मैंने मरी हुई एक छोटी बच्ची को दफन किया। यीशु को कबूल करने के बाद मैंने दुखों को जाना। मुझे ये बताने दें कि उन दुखों ने मुझे बेहतर इंसान बना दिया। खुदा ने मुझे फरोतन बनाया।
मुझे तब्दील किया, मुझे काटा छांटा। उसने मुझे आला किरदार सिखाया और बख्शा। उसने मुझे तौबा करने के लिए घुटनों के बल झुकाया और मुझे बलूगत बख्शी। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि शायद ये आपको अहमकाना लगे, लेकिन मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे पहले मुस्लिम खावंद ने मुझे फर्शों पर पीटा, मेरे मुंह पर थूका, मुझे गालियां दी। मैं खुश हूं कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मेरी गवाही के वसीले से यीशु किसी शख्स को आजादी दे। आज मैं शुक्रगुजार हूं कि एक मंशियात के आदि खावंद के जरिए मैंने जाना कि अपने प्यारों की इल्लत के लिए लड़ना क्या होता है। मैं खुश हूं कि मैंने बतौर तन्हा माँ होते हुए मुसीबत उठाई। मैंने तन्हा माँ होते हुए बड़ी मुसीबत देखी। आज मैं किसी को कह सकती हूँ, कोशिश जारी रखो, तुम अजीम काम कर रही हो। हो सकता है कि तुम नाकामी महसूस करती हो, खुदा तुम्हारी हर गलती सुधार सकता है। मैं खुश हूं कि मैंने एक नन्ही बेटी दफन की। आज मैं किसी को गले लगाकर कह सकती हूँ, मैं जानती हूँ किसी अजीज का खोना क्या होता है, नन्ही बच्ची को दफन करना क्या होता है। मैं इस एहसास को जानती हूँ। मैं अपनी मुसीबतों के लिए शुक्रगुजार हूँ। वो मेरी जिंदगी में बहुत सा फल लाई, लेकिन खुदा ने मुझसे हमेशा फरमाया कि चुनाव तुम्हारा है कि तुम बेहतर बनती हो या बदतर। अगर तुम मेरे साथ चलोगे, अंधेरी वादी में से मेरे साथ गुजरोगे, मेरा हाथ पकड़े रखोगे, तो मैं वादा करता हूं कि गार के इख्तिताम पर, वादी के इख्तिताम पर तुम बेहतर बन जाओगे। लेकिन अगर आप दुश्मन की बात तो सुनने का इंतखाब करें कि मैं ही क्यों, तो ये खुदा की मर्जी नहीं है। नहीं, मुझे उसके मतलब कुछ करना होगा, मुझे उससे निकलना होगा। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। तो मुझे आपके लिए डर है कि आप कड़वाहट और नाकामी से भर जाएंगे, लेकिन अगर आप सीखें तो फेल ना होंगे, आप सीखते हैं। मैंने ये कहीं सुना है और आज मैं आप सबको मस्बा पर बुलाती हूं। अगर मुसीबत में है तो आगे आए। मुझे याद है कि बाइबल में एक औरत थी जिसका 12 साल से खून जारी था। यीशु ने फरमाया, तेरे ईमान ने तुझे शिफायाब किया, मुसीबत से आजाद हो जा। एक वक्त होता है कि मुसीबत भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है और हमें आजाद करता है। इसी वक्त अपने घुटनों के बल हो जाए और उससे इल्तिजा करें कि आपका हाथ थाम ले। खुदा आपको बरकत दे।